Students, now I am starting exercise 13.2 in this chapter, surface areas and volumes. So here first question solved. First question is the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Height is given 14 and CSA of cylinder is given 88 cm square. So if we use the formula for CSA of cylinder, that is 2 pi RH, that is equals to 88. Now putting the values, so 2 pi, that is 22 upon 7 into R we have to find, and into H it is given 14. 7 to the 14. Now multiplying these three terms, 2 into 22 into 2, that is will be 88 into R equals to 88. Now 88 goes to divide, so we get R equals to 1. Now we have to find diameter. So we know diameter is twice of radius. Diameter equals to double of radius. So 2 into R. Now 2 into 1, that will be 2 centimeter. That is your answer. Now we start second question. Second is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter. 1 meter का एक closed cylindrical tank बनाना है and base diameter is 140 centimeter. Diameter is given. From a metal sheet, how many square meters of the sheet are required for the same? Means हमें total surface area उसका find करना है क्योंकि closed cylindrical tank बनाना है. Height given है 1 meter. Second question, here I am doing. Height h is given 1 meter and diameter is given 140 centimeter. So we convert into meter. First we find radius, that is d upon 2. So it will be 140 upon 2 centimeter, means 70 centimeter. If we convert into meter, so 70 upon 100 meter, 0 0 cancel, that means we will get here R equals to 7 upon 10 meter, or we can write 0.7. Now we have to find TSA or put in decimal also, so 0.7 meter. Now TSA of closed cylinder, cylindrical tank लिख दो आप इसे, equals to formula will be 2 pi R in bracket H plus R. Now putting the values of R and H, so 2 pi, that is 22 upon 7 into R, that is 7 upon 10 or 0.7, and even you can put. So I am putting 0.7 into H plus R. So H is 1 plus R, that is 0.7. Now simplify it. So 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 0.1. तो 2 into 22, 44. 44 into 0.1, that will be 4.4. Into 1 plus 0.7, so 1.7. Now on multiplying, 17 4 जा 68, 6 carry, 68 and 6 74. Decimal 2 digit before, so 7.48 meter square. That is the TSA, total area of sheet required for making the tank. Okay. Now we start third question, that is a metal pipe is 77 centimeter long. एक metal pipe है जिसकी length given है 77 centimeter sorry. Length means उसकी height हो गई. Pipe is given. The inner diameter of a cross section is 4 cm and the outer diameter being 4.4 cm. Find its inner CSA, outer CSA and total surface area. TSA find करना है. So I am raising. Now firstly, what is given? Height of cylindrical pipe, and pipe is open. Open pipe here means if we draw a diagram here, like this. This one. So diameter of inner diameter है that is given 4 centimeter and outer diameter is 4.4 centimeter. Means this is 4 centimeter and this is 4.4 centimeter. तो हम रेडियस दोनों फाइंड कर सकते हैं. एंड हाइट इज गिवन 77 centimeter long. तो हाइट इज 77 centimeter. दिस वन. तो h तो दोनों के लिए सेम रहेगा, रेडियस दोनों चेंज हो जाएंगी. आप इसे R1 R2 या फिर स्मॉल r और कैपिटल R कह सकते हैं. ठीक है. सो सेकेंड क्वेश्चन. सो मैं इसे स्मॉल r और कैपिटल R कह रहा हूँ, तो स्मॉल r इनर रेडियस हो जाएगी. चलो लिख देते हैं इसे. इनर रेडियस दैट इज स्मॉल r, सो इट इज इनर डायमीटर अपॉन 2. तो 4 upon 2, that will be 2 centimeter. Now outer radius that is capital R I am assuming,
So it will be 4.4 upon 2, that is 2.2 centimeter. And height is given, that is 77 centimeter. Now first part we have to find inner CSA. तो फर्स्ट पार्ट है इनर CSA हमें फाइंड करना है. इनर CSA मीन्स जो इनर अंदर वाला ही पार्ट है, इसके अलोंग अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसका कर्व सरफेस एरिया लगेगा, दैट इज 2 पाई, और इनर रेडियस लगेगी मीन्स स्मॉल आर एच. वैल्यूज पुट कर रहे हैं. सो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर दैट इज 2 इंटू एच दैट इज 77. 7 से 77 कैंसिल, 11 हो जाएगा. तो 2 to the 4 इंटू 22, 88 इंटू 11. तो 88 इंटू 11, 11 इट जा 88, 8 कैरी और 88 और 8 96. तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट इज डन. इनर CSA आ गया. सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउटर CSA. आउटर CSA तो सेम होगा सॉल्व, बस रेडियस चेंज हो जाएगी. 2 पाई कैपिटल आर एच पुट हो जाएगी वैल्यू. तो 2 पाई इज 22/7 इंटू आर कैपिटल आर दैट इज 2.2 इंटू एच सेम 77. 7 से कैंसिल, 11. तो 11 इट जाए 88 सेम रहेगा. ठीक है, 11 अच्छा 22 चेंज हो गया. ओके, चेंज किया हुआ 2.2 यहाँ पे आ गया ना. तो इस 2.2 को हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे. 44 इंटू 11 को हम मल्टीप्लाई करें तो 11 4 जा 44 और 44 और 4 48. 484 इंटू 2.2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 22 4 जा 88, 8 कैरी. क्लियर. नाउ 22 8 जा 176 और 8 सो 184, 18 88 और 18 106. डेसिमल 1 डिजिट बिफोर, तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is outer CSA. Done. Now third part is we have to find total surface area of the pipe. अब यहाँ पे समझिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप अगर हमें फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल एक सिलेंड्रिकल पाइप है. अब थिकनेस तो चलिए हम इसे भी बना लेते हैं. ठीक है, मैं इसको शो कर रहा हूँ. एक पाइप फॉर एग्जांपल ये पाइप है. ठीक है, अब इसका इनर CSA हमने अंदर वाला एरिया फाइंड कर लिया, आउटर CSA एरिया फाइंड कर लिया. अब टोटल सरफेस एरिया में कौन सा एरिया ऐड होता है? टॉप और बॉटम. अब यहाँ पे टॉप और बॉटम क्या है? सर्किल्स तो हैं, बट हमें पाइप जो मेटल यूज़ हो रहा है उसका एरिया फाइंड करना है. तो उसके लिए जो आउटर सर्किल का एरिया होगा वो, और माइनस इनर सर्किल का एरिया. जब दोनों सर्किल माइनस होंगे तभी ना ये बाउंड्री का एरिया हमें निकलेगा. ठीक है, यहाँ पे थिकनेस नहीं है, लेकिन अगर मान लो ये थिकनेस है कितना है यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर. तो वो थिकनेस का अगर ये पाइप होता 2.2 सेंटीमीटर इस टाइप से मोटा, तो हमें क्या करना है? आउटर सर्किल का एरिया माइनस इनर सर्किल का एरिया. एक पार्ट आता और उसका डबल कर देंगे तो इस साइड भी आ जाएगा. मीन्स तो हमें यहाँ पे क्या करना है? दो सर्किल्स जो हैं आउटर और इनर दोनों को माइनस करना है. जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है, देखिए डायग्राम में. अगर हम इस टोटल एरिया को फाइंड करें, बड़े वाले को पहले फाइंड कर लें और इसमें से छोटा वाला एरिया माइनस कर दें, दिस वन ये माइनस कर दें, तो ये एरिया हमें मिल जाएगा. और वही एरिया ऊपर भी है तो उसको बाद में डबल कर देंगे. एक एरिया फाइंड करके दूसरे को टोटल को फाइंड करने के लिए हमें उसको डबल करना है. क्लियर. सो थर्ड पार्ट, तो इसे हम कहते हैं रिंग. सर्कुलर रिंग होगी ना, दो सर्किल का डिफरेंस है तो वो सर्कुलर रिंग. तो एरिया ऑफ टू सर्कुलर रिंग्स, टू क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों हैं सर्कुलर रिंग्स, तो इनका एरिया 2 और आउटर सर्किल का एरिया मीन्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनर सर्किल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर. पाई कॉमन ले लीजिए तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे. तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. देखिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, सो 2 इंटू पाई, पाई दैट इज 22/7 इंटू ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस आर. तो कैपिटल आर इज 2.2 और प्लस 2, तो 2.2 प्लस 2 एंड अदर ब्रैकेट 2.2 माइनस 2. सिंप्लीफाई कर लीजिए. 44/7 इंटू 2.2 प्लस 2 मीन्स 4.2 इंटू 0.2. 7 से कैंसिल हो जाएगा. 42 7 6 42, बट यहाँ डेसिमल है तो 0.76 42. क्लियर. इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6 2 12, 12 का मल्टीप्लाई 44 से करना है तो 12 4 जा 48, 4 कैरी, 48 और 4 52. डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 and 1 2. तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर.
और अगर हम तीनों एरियाज़ को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, क्योंकि इनर सी एस ए मीन्स दिस वन, आउटर सी एस ए दिस पार्ट एंड दीज टू एरियाज दिस वन. सो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ द cylindrical pipe that is equal to inner CSA plus outer CSA and plus area of two rings, area of two circular rings, और तीनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए. तो इनर CSA कितना था 968 प्लस आउटर CSA 1064.8 एंड थर्ड वन इज 5.28. देखो प्लस करना है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स देख लीजिए पहले. ये डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट है, सिंगल है, बाकी कहीं नहीं है, तो 8 एज इट इज़ आ गया. फिर फर्स्ट डिजिट देखिए 2 एंड यार 8, 2 और 8 10, कैरी 1, 1 और 5 6 और 4 10 और 8 18, कैरी 1, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 1 कैरी, 1 और 0 1 और 9 10, अगेन 1 कैरी, 1 और 1 2. तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन. क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट. It is second, no, it is third question actually. Okay, second is done previously. Now move to next fourth question. That is the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of a playground in मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है, तो पहले हम सारी डायमेंशन को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और लेंथ यानी कि हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर. तो फर्स्टली रेडियस फाइंड कर लो. रोलर है कुछ इसी टाइप का, मान लो सिलेंडर है. ठीक है, और हमें रोलर का कितना एरिया कवर करेगा वो कैसे पता चलेगा. रोलर रोल हो रहा है, मीन्स सिलेंडर अगर रोल होगा, ये पार्ट, चलिए मैं इसका ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, रोलर ही मान लीजिए. ठीक है, अगर ये रोलर है और ये एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर किया अपने सरफेस एरिया के बराबर. सी एस ए या टी एस ए, किसके बराबर कवर करेगा, सी एस ए के बराबर, क्योंकि रोल यूँ हो रहा है. ठीक है, तो ये अपने सी एस ए के बराबर कवर करेगा एरिया. और इसकी लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ है 120 सेंटीमीटर और डायमीटर है 84 सेंटीमीटर. इट इज़ 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर. और हमें क्योंकि एरिया किस में फाइंड करना है, मीटर में, मीटर स्क्वायर में, तो इनको हम अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस 84/2 दैट इज़ 42 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100, सो इट इज़ 0.42 मीटर. या फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नाउ फ्रैक्शन में रहने दें, चलो फ्रैक्शन में रहने देते हैं. ओके, तो 42/100 मीटर. नाउ हाइट h इज गिवन 120 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करना है तो 120/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 से कट 4 से कट नहीं 2 से ही कटेगा. 2 6 = 12, 2 5 = 10 मीटर मीन्स 6/5 मीटर. यहाँ भी हम इसे कैंसिल कर ले रहे हैं, ये 2 से कैंसिल होगा, 21 और 2 से 50, सो 21/50 मीटर. क्लियर? नाउ एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया ये कवर करेगा, तो ये अपने सी एस ए के इक्वल. तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ रोलर. और रोलर कैसा है, सिलेंड्रिकल. और सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, 2πRh. तो वैल्यू पुट कर देंगे 2πRh में. ओके, फॉर्मूला लिखिए 2πRh एंड पुट द वैल्यूज. 2π दैट इज 22/7 इंटू r दैट इज 21/50 इंटू h दैट इज 6/5. क्लियर? 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 = 21. ठीक है, बाकी एक केवल 2 से कैंसिल हो सकता है, बस 2 से हम इसे कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 से 25 आ जाएगा. सो वी गेट 22 और
6 या 18, तो 18 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 टू जा 36, 3 कैरी 36 और 3 39, 396 अपॉन में कितना आएगा 25 5 जा 125, यूनिट इज मीटर स्क्वायर। और कितने रिवॉल्यूशन में हमें एरिया फाइंड करना है 500 रिवॉल्यूशन में। तो ये कितने रिवॉल्यूशन में हम फाइंड कर चुके हैं 1 रिवॉल्यूशन में। तो सेम ही आ जाएगा एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशंस। तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 396 अपॉन 125 इंटू 500 और यूनिट मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए 125 को 500 से, तो 5 से कट जाएगा 100 और 5 से कट होगा 25। अब 25 4 जा 100, सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 9 जा 36 2 38, 3 कैरी 4 3 जा 12 एंड 3 15। तो 1584 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होगा। ठीक है, अगर यही एरिया हेक्टेयर में फाइंड करना हो तो सिंपली 10,000 से डिवाइड कर देंगे, सो 0.1584 हेक्टेयर। ठीक है, अगर हेक्टेयर में फाइंड करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है, अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 3.5 centimeter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of 12.50 मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, CSA एंड मल्टीप्लाई बाय 12.5 सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, CSA गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। सेम क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से करेंगे। ठीक है, मैं 7th क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ नाउ। तो 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सिलेंडर है तो हम डायग्राम ये रहने दे रहे हैं। 7th क्वेश्चन है देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स CSA। सेम ही क्वेश्चन है वैसे, फिर भी चलिए करा लेते हैं। 3.5 मीटर डायमीटर दिया हुआ है एंड डेप्थ दी हुई है 10 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है इसको, हाँ इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर CSA फाइंड करना है, डायमीटर है 3.5, फर्स्टली फाइंड रेडियस, तो रेडियस विल बी 3.5 अपॉन 2, डेसिमल हटा के हमने 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो 5 7 जा 5 4 जा, मीन 7 अपॉन 4 4 मीटर, एंड हाइट इज गिवन 10 मीटर, डेप्थ और हाइट सेम थिंग। तो इनर CSA फाइंड करना है, तो CSA क्या होगा 2 पाई RH, पुटिंग द वैल्यू, सो 2 पाई 22 अपॉन 7 इंटू R, दैट इज 7 अपॉन 4 इंटू H 10, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22 5 जा 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, नो प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, rate is given 40, so we have to multiply 110 into 40, 110 by 40, तो 40 रुपीज़ इंटू 110 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, so रुपीज़ 11 4 जा 44 एंड 00, so 4,400 रुपीज़ इट इज़ द कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए कराना होता है इसे। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, सिलेंड्रिकल एक पाइप है जिसकी लेंथ दी हुई है 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर सेंटीमीटर में है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। देखिए टोटल रेडिएटिंग सरफेस कहा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है, टोटल कह दिया है इन्होंने, जबकि हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना है। क्यों, जो पाइप है एक्चुअली हीटिंग सिस्टम का, जो भी आपका गीज़र वगैरह होता है, अगर उसमें पाइप कोई लगा होता है तो देखिए जो इसका टॉप और बॉटम जो होते हैं सिलेंडर के ना, ये दोनों पार्ट कहीं ना कहीं फिट होते हैं, तो वो रेडिएट नहीं करते हैं, हीट रेडिएट नहीं करते हैं। ओके, ये दोनों हीट रेडिएट नहीं करेंगे। हीट रेडिएट करने वाला सरफेस केवल ये CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेडिएटिंग सरफेस कहा है तो हम भाई थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें टोटल कहा है तो TSA फाइंड करना है, जबकि इस क्वेश्चन में CSA फाइंड करना है। क्लियर, बस बाकी कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 8th क्वेश्चन देखिए, तो क्या क्या गिवन है, हाइट गिवन है हमें 28 मीटर, हाइट इज गिवन 28 मीटर एंड डायमीटर इज गिवन, डायमीटर रेडियस, डायमीटर इज गिवन 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर।
So firstly we have to find radius. Radius is 5/2 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/2 और इंटू 100 मीटर, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 20 मीन्स 1/40 मीटर एंड हाइट इज गिवन 28 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया. तो टोटल रेडिएटिंग हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न ना हो, कोई बात नहीं. टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ पाइप है, हीटिंग पाइप, क्या करें, रॉड, व्हाट इज गिवन, वाटर स्टीम पाइप है, हाँ, CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप. Now 2 pi RH, put the values. So 2 pi 22/7 into R, that is 1/40 into H, that is 28. So 7 4 जा 28, 4 से कैंसिल हो गया 10. ठीक है, 10 से कैंसिल मत करो, 44/10 हो जाएगा, तो 44/10 मीन्स 4.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेसिमल सीधे मूव हो जाएगा केवल एक डिजिट. ठीक है, तो इसलिए 2 से कैंसिल करोगे 5 आ जाएगा, फिर डिवाइड करोगे तो वहीं पहुंचेगा क्वेश्चन फिर से, तो 4.4 मीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन इज फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक. एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जो कैसा है, क्लोज है, लेकिन फाइंड क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया. दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट. तो डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर और हाइट गिवन है 4.5 मीटर. ठीक है, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ. हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेकंड पार्ट है ज़्यादा. ठीक है, फर्स्ट में तो कुछ नहीं, सिंपल है, CSA फाइंड करना है, बट सेकंड पार्ट अलग है थोड़ा सा. ठीक है, हाइट कितनी गिवन है, 4.5 मीटर और डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर. ठीक है, तो रेडियस फाइंड कर लें और हाइट लिखते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 9, रेडियस इज 4.2/2, दैट इज 2.1 मीटर एंड हाइट इज 4.5 meter. Clear? Now, first part we have to find CSA of cylindrical tank. ठीक है, तो CSA फॉर्मूला वही रहेगा, 2 pi RH, वैल्यूज पुट कर दीजिए. सो 2 pi दैट इज 22/7 इंटू R दैट इज 2.1 इंटू H दैट इज 4.5. 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 या 21, तो 0.3. क्लियर? नाउ 3 2 जा 6 और 22 6 जा 132 मीन्स 13.2 इंटू 4.5. मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 2 जा 90, 0 9 कैरी, 45 3 जा 135 और 9 तो 144, 14 कैरी, 45 और 14 59, डेसिमल 2 डिजिट बिफोर, so 59.40 meter square, that is CSA of cylindrical tank. Now we read second part. Second part is how much steel was actually used. कितनी स्टील एक्चुअली यूज़ हो रही है. If 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. जब टैंक बनाया जा रहा है तो 1/12 जो स्टील है, मतलब जितनी हमने परचेज करी है उसकी 1/12 स्टील वेस्ट हो रही है. तो कितनी स्टील यूज़ हुई वो तो TSA बता देगा, और कितनी बचेगी वो कैसे हमें पता चलेगा, 1/12 हमें टोटल में से माइनस करना होगा, वो TSA के इक्वल हो जाएगी. मीन्स फर्स्ट पार्ट तो हमें TSA फाइंड करना है. तो पहले तो हमने TSA फाइंड कर लिया, TSA ऑफ टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक और सिंपल टैंक. तो TSA फॉर्मूला क्या होगा, 2 pi RH plus R. क्लियर? पुटिंग द वैल्यूज. सो 2 pi दैट इज 22/7 इंटू R दैट इज 2.1 इंटू H plus R. So H is 4.5 plus R that is 2.1. क्लियर? 7 से ही कैंसिल हो जाएगा, 7 3 या 21, so 0.3. नाउ 44 3 या 132, अगेन 13.2 सेम रहेगा ये, और इंटू 4.5 प्लस 2.1 4 to 6 6.6. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे. 66 2 जा 132, 13 कैरी, और 66 3 जा 198, तो 198 और कितना था यहाँ पे 13 था, तो 211 198 था ना, तो 211 मीन्स 21 कैरी और 66 और 21 तो 87.
डेसिमल 2 डिजिट बिफोर, तो 87.12 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया TSA। लेकिन ये एक्चुअल स्टील यूज़ नहीं हुई है, एक्चुअल जो यूज़ हुई है उसको हम X मान ले रहे हैं। तो लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड बी X मीटर स्क्वायर। और वेस्ट कितनी हुई है, तो स्टील वेस्टेड दैट इज 1/12 ऑफ X। एक्चुअल जो स्टील यूज हुई थी उसका 1/12, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 1/12 X मीन्स X/12। अब TSA में जो यूज हुई वही तो TSA में लग रही है, ये तो वेस्ट हो गई। जो बची स्टील वही हमारा किसके इक्वल हो रही है, TSA के इक्वल, वो इसमें है, शो कर रही है। मीन्स तो TSA ऑफ द टैंक इक्वल टू इन दोनों का हमें माइनस कर देना है। तो एक्चुअल स्टील माइनस स्टील वेस्टेड, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू TSA ऑफ टैंक, इक्वल टू TSA ऑफ टैंक। जो टैंक का TSA है वो किसके इक्वल होगा, टोटल स्टील माइनस स्टील वेस्टेड। टोटल स्टील कितनी थी, X थी, माइनस वेस्ट कितनी हो गई, X/12, तो यहाँ /1 लिख दे रहा हूँ मैं, और इक्वल टू TSA हम फाइंड कर चुके हैं दैट इज 87.12। एलसीएम ले लेंगे, 12 हियर इट इज 12 इंटू X, so 12X माइनस 1X इक्वल्स टू 87.12। क्लियर। सो 12X माइनस 1X मीन्स 11X आ जाएगा। तो 11X अपॉन 12 इक्वल्स टू 87.12। और यहाँ से अगर हम X को सेपरेट कर देंगे तो X इक्वल्स टू क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई में और 11 डिवाइड में, तो 87.12 इंटू 12 और अपॉन 11 से ये कैंसिल होगा। देखिए 11 7 जा 77, 10 बचेगा, 101, 11 9 जा 99, 2 इज लेफ्ट 22, 11 2 जा 22, 7.92 और इंटू 12 करना है अब हमें। सो X इक्वल्स टू आ गया 12 2 जा 24, 2 कैरी, 12 9 जा 108 और 2 110, 11 कैरी, 12 7 जा 84 और 11 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टील एक्चुअली यूज्ड हुई है। दिस इज क्वेश्चन 9। नाउ we have to start next question, that is question number 10 11 easy questions हैं, दोनों को ख़त्म कर देते हैं जस्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है। इन फिगर 13.12 you see the frame of a lampshade, it is to covered with a decorative cloth से कवर करना है। the frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. a margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. find how much cloth is required for covering the lampshade. तो lampshade को कवर करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ तक ये lampshade था और ऐसे ही यहाँ तक ये था, ठीक है। इसकी हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर और जो फोल्डिंग हो रहा है वो गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इट इज़ गिवन 20 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हाइट जो टोटल होगी वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो रेडियस है हो जाएगी 20/2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट ऑफ क्लोथ अगर हम लिखें, टोटल हाइट ऑफ डेकोरेटिव क्लोथ है, तो चलो डेकोरेटिव क्लोथ ही लिख दे रहा हूँ मैं, डेकोरेटिव क्लोथ। एंड दैट इज जो लैम्पशेड की हाइट थी वो कितनी थी, 30, 2.5 टॉप में और 2.5 बॉटम में, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 2.5 प्लस 2.5, 2.5 और 2.5 5 प्लस 30 दैट मीन्स 35 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गई 35 और रेडियस हो गई 10 और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्लोथ। तो एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड means we have to find CSA. So CSA is 2 pi RH. Putting the values 2 pi 22/7 into R that is 10 into H 35. Simple है, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 10 into 10 100 into 22 means 2200
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, लास्ट क्वेश्चन है 11th, इसको देख लीजिए। 11th क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड बना के हमें पेन होल्डर बनाना है और उसको डेकोरेट करना है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है 3 और हाइट 10.5। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड सप्लाई करना है। इफ़ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। देखिए जो पेन होल्डर बनाना है यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है, पेन होल्डर पूरा कवर नहीं होगा, पेन होल्डर का जो बॉटम होगा वो तो कवर होगा बट टॉप ओपन होगा। मीन्स हमें इसमें CSA और प्लस एरिया ऑफ बॉटम फाइंड करना है। क्लियर। तो देखिए इसमें रेडियस और हाइट दोनों वैल्यूज़ गिवन हैं, उनको मेंशन कर लेते हैं। रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड H इज़ 10.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स, 35 पेन होल्डर के लिए हमें फाइंड करना है। दैट इज इक्वल्स टू 35 इंटू और ब्रैकेट में हमें लिखना है CSA ऑफ पेन होल्डर और प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस उसमें क्लोज होगा, बेस ओपन नहीं होगा, ओपन क्या होगा टॉप। ठीक है। तो 35 का हम डायरेक्ट फाइंड कर ही चुके हैं, 35 से मल्टीप्लाई है। CSA ऑफ पेन होल्डर मीन्स 2 पाई RH और प्लस एरिया ऑफ बेस दैट मीन्स पाई R स्क्वायर। एक सर्किल ऐड हो जाएगा, कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो 35 इंटू पाई R कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और H और प्लस ब्रैकेट में R। नाउ पुट द वैल्यू। सो 35 इंटू पाई 22/7 इंटू R इज 3 इंटू 2H प्लस R, तो 2 इंटू H दैट इज 10.5 और प्लस R दैट इज 3। 7 5 जा 35, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। नाउ हियर इट इज लेफ्ट 5 इंटू 22, 22 5 जा 110 इंटू 3 दैट इज 330 और इंटू 2 इंटू 10.5 मीन्स 21 और प्लस 3 मीन्स 24। मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 24 3 जा 72, 7 कैरी 72 और 7 79, सो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ द टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स। पेन होल्डर्स जो बनाने हैं उनके लिए एरिया है।